Good morning everyone, Sanila ma'am is back. So we all are going to start a new lesson today as we have completed with our lesson 3 and also we have completed our unit test. I hope you all have scored a good mark and you all are learning and properly completing your notes and everything. So let's get started with our new lesson, okay? As we have already read this lesson while we were having our online classes. Ma'am must be reading this lesson with you, right? She must have explained you, है ना? Also मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया था, है ना? So I hope आप लोगों को ये lesson clear होगा, लेकिन again we are going to read it once again ताकि आप लोगों को कोई doubt ना रहे, ठीक है? So once again we'll read the lesson and I will explain what all things are mentioned in the chapter and then we'll move on to the exercise portion. Okay, so all of you take out your textbook, that is your semester 2 English page number 29, lesson 4, 3 friends and a boot. Okay, so I want everyone to concentrate on what I am saying and also keep your finger where I am reading and try to understand the meanings of the difficult words. जैसे कि आपको हर लेसन में न्यू वर्ड्स मिलते हैं, है ना, जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होता है, जिसकी मीनिंग्स आपको नहीं पता होता है, तो मैम जब उसे बताती है तो उसे अपने दिमाग में नोट करना है आपको। तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए बैठना है, कॉन्सेंट्रेशन से बैठना है, ध्यान से सुनना है, then only you will be able to do so. Okay, so I'm going to start reading the lesson. You all have to keep your finger where ma'am is reading. Okay, so there is one warm up exercise before the lesson, है ना? So first we'll do that and then move on to the reading part. Okay, so 3 friends and a boot. Okay, warm up is, if you see a bag or doll or any toy lying on the road, will you pick it up? What should you do then? Discuss in the class. Now we are going to discuss about this. Okay, आपको अगर आप किसी रास्ते जा रहे हो, suppose you are going with your parents or you are going to school or you are going to your coaching or wherever, है ना? Suppose you are walking on a road, on a path, and suddenly you see something laying on the floor, right? It might be a ball or some money or an apple, whatever it is. Okay, so what will you do when you see that? Will you pick it up? What will you do? Yes or no? Will you pick it? No, right? We don't need to pick it up, है ना? Because we are already having everything that we need. And in case if you see that also, and if it is a good thing also, if it is money also, पैसे हम कभी नहीं छोड़ते, right? But you should not pick it up, as it might be of someone else, है ना? किसी और का होगा, वो किसी ज़रूरतमंद का होगा, गिर गया होगा गलती से, है ना? और अगर आप लोग ने देखा है कि कोई आपके आगे चल रहा है, उसके पैसे गिर गए और सडनली आपने देखा, तो क्या आप उसे उठा लोगे? उठाओगे, लेकिन आप क्या करोगे उठा के? खुद रखोगे क्या? नहीं, आप तुरंत उस आदमी को बोलोगे कि यार आपके पैसे गिर गए, आप प्लीज ले लीजिए, है ना? या फिर आप ले आके दे दोगे आप उन्हें, है ना? दिस इज अ गुड मैनर। लेकिन क्या कहीं भी नीचे पड़ी हुई कोई चीज उठाना इज अ गुड मैनर? No, we should not, right? So if you find anything on your path laying down, you should not pick it up. It is very bad, right? So आपको 2 options दिए हुए हैं, yes or no. What will you do? You will tick on no, right? तो आपको ऐसे 2 boxes दिखाए हैं, है ना? जिसमें एक में क्या लिखा है? Yes, एक में क्या लिखा है? No. You have to tick on no. Take your pencil and tick on no. Have you all done? Shall we move forward? Yes. Now we'll move on to the reading part, है ना? Now ma'am will read the lesson and explain. Okay? Yes. Look into your book everyone and keep your finger where ma'am is reading. This is a play based on a story of 3 friends. Bhola the bear, Monu the monkey and Sia the jackal were good friends. ठीक है? आपको ये स्टोरी एक प्ले से रिलेटेड है। प्ले मीन्स क्या? आप लोग सडनली सोचोगे प्ले मीन्स गेम, खेलना, राइट? बट नो, प्ले मीन्स ड्रामा और स्किट, राइट?
आप लोग जब स्कूल आते थे असेंबली में आप लोग स्किट प्ले करते थे, राइट। लास्ट ईयर आप लोगों ने जब आप लोग का एनुअल डे हुआ था, है ना, आप लोग ने देखा था बच्चे लोग ने स्किट किया था, कुछ लोग पेड़ बने थे, कुछ लोग फ्लावर्स बने थे, राइट, यस। सो वैसे ही आप लोग कोई प्ले या ड्रामा जो होता है आपने देखा होगा, स्किट, है ना, ड्रामा करते उस तरह से होता है ये प्ले, है ना। सो इस प्ले में 3 फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है। ओके, सो हु वर द 3 फ्रेंड्स? भोला द बियर, मोनू द मंकी एंड सियर द जैकल। ठीक है, ये देखो, भोला द बियर, मोनू द मंकी एंड सियर द जैकल, 3 लोग हैं, राइट। सो इन तीनों ने क्या किया? They lived in a forest. वो कहाँ रहते थे? They lived in a forest. Forest means जंगल, है ना, जंगल में वो लोग रहते थे। Then every morning they walked together to the pond in the middle. अब वो क्या करते थे? हर सुबह साथ में वॉक करके जाते थे पॉन्ड। कहाँ? पॉन्ड जाते थे। पॉन्ड में वहाँ क्या था? पानी, राइट। पानी पीने वो लोग सुबह तीनों वॉक करके साथ में जाते थे। Then the pond was in the middle of the forest to drink fresh water. अब देखो पॉन्ड कहाँ था? जंगल के बीचों बीच, है ना, जंगल के बीचों बीच पॉन्ड था जहाँ पे वो पानी पीने सुबह सुबह जाते थे सो के उठ के, है ना। तो तीनों फ्रेंड्स क्या करते थे? वॉक करते हुए साथ में जाते थे। ठीक है, दिस वॉज योर फर्स्ट सीन, है ना, आपके ड्रामा या आपके प्ले का फर्स्ट सीन था ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सो टर्न योर पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 30 एवरीवन। Yes, see, it is a bright morning. Bhola, Monu and Seer are walking along the forest path. ठीक है, it is a bright morning. Bhola, Monu and Seer are walking along the forest path. There are many trees around. The morning was very, very bright. It was very sunny and very beautiful morning it was. And Bhola, Monu, Seer, तीनों friends क्या कर रहे थे? They were walking along the forest path. फॉरेस्ट के बीचों बीच एक रास्ता गया है जिसे उन्होंने पाथ कहा है, और उस पाथ से वो लोग तीनों साथ में ऐसे पॉन्ड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और जब उन्होंने देखा, वो जब चल रहे थे, उनके पाथ के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ थे, है ना, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड। ठीक है, देन सियर, व्हाट अ ब्राइट मॉर्निंग। सियर ने क्या कहा? व्हाट अ ब्राइट मॉर्निंग। तो भोला ने कहा यस इंडीड इट इज अ नाइस डे। भोला ने कहा सच कह रहे हो, वाकई में कितनी खूबसूरत सुबह है ना। तो मोनू ने कहा ओ यस, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग टुडे, आई होप द वाटर इन द पॉन्ड इज कूल टू। तो मोनू द मंकी ने कहा कि हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, एक ठंडी हवा भी बह रही है और मुझे लगता है कि पॉन्ड का जो पानी होगा वो भी बहुत ठंडा होगा, है ना। सो दे वर सेइंग दैट द मॉर्निंग वाज वेरी ब्राइट, वेरी सनी एंड वेरी कूल टाइप ऑफ, है ना, बहुत सुंदर सी हल्की सी धूप, ठंडी हवा, ऐसा बहुत सुंदर सा मॉर्निंग था जिसमें उनको लग रहा था कि इतना अच्छा क्लाइमेट है तो ज़रूर पॉन्ड का पानी भी एकदम ठंडा ठंडा होगा, राइट, यस। देन सडनली सियर सीज समथिंग ऑन द वे एंड स्टॉप्स। अचानक से सियर ने कुछ देखा रास्ते में चलते चलते और वो रुक गया। सियर कौन? जैकल, है ना, जो जैकल था इसने सडनली कुछ चलते चलते उसके पाथ में देखा तो वो रुक गया। ठीक है, देन इट इज अ मैन्स बूट, द बूट इज लॉन्ग, ग्रे इन कलर एंड हैज लेसेस। दे हैड नेवर सीन अ बूट बिफोर, सो दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। और उन्होंने जो देखा वो क्या था? देखो ये था, है ना, एक बूट देखा उन्होंने जो एक इंसान पहनता है, उसका कलर ग्रे था और उसमें लेसेस भी थे। ठीक है, लेकिन इन तीनों ने कभी भी एक बूट नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो जानवर है और जानवर बूट्स नहीं पहनते। तो फिर उन्हें कैसे पता होगा कि ये बूट है या क्या है? तो उन तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम इसे पता लगाए कि ये क्या है ना। देन सियर, हे फ्रेंड्स लुक आई फाउंड समथिंग। अब सियर ने देखा और वो रुक तो गया था, तो उसने क्या किया? उसने अपने दोस्तों को कहा कि दोस्तों ये देखो, मैंने कुछ पाया है यहाँ पे, देखो मैंने कुछ देखा है, यहाँ रोड पे कुछ पड़ा हुआ है, राइट। बोला यस बट व्हाट इट इज, है ना, व्हाट इज इट। भोला ने भी देखा, कहता हाँ मैंने भी देखा, बट ये है क्या चीज़, है ना।
मोनू, इट लुक्स लाइक द शेल ऑफ अ फ्रूट। मोनू कौन था? मंकी। मंकी को क्या लगा कि ये तो किसी फ्रूट का शेल है ना। फ्रूट का शेल मतलब छिलका, है ना, ऊपर का जो हिस्सा होता है, लाइक ऑरेंज हो गया, आपका अखरोट हो गया, या किसी भी तरह का आपका फ्रूट जिसके ऊपर शेल रहता है ना, छिलका जो बोलते हैं हम, वैसा कुछ, है ना। देन भोला, नो आई थिंक इट इज अ प्लांट, लुक इट हैज रूट्स ऑल्सो, पॉइंट्स टू द शूलेस। अब देखो, भोला कौन था? बियर। उसने देखा, उसने इमेजिन किया कि मुझे तो लगता है कि ये कोई प्लांट है, क्योंकि देखो इसके रूट्स भी है। अब रूट्स क्या है? शूलेस। शूलेस को देख के भोला ने क्या कहा कि ये तो प्लांट है और इसके रूट्स भी है, ठीक है। रूट्स यानी जड़। Seer, rubbish, can't you see it is the nest of a bird? The bird will come and lay eggs inside. तुरंत सीयर ने क्या कहा, जैकल ने, कि तुम लोग सब फालतू बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है एक चिड़िया का घोंसला। क्या है? चिड़िया का घोंसला, जिसमें चिड़िया आएगी और अंडे देगी, ठीक है। तो अब तीनों फ्रेंड्स ने क्या क्या कहा? मोनू ने कहा कि ये क्या है? किसी फ्रूट का शेल है ना। और भोला ने क्या कहा कि वो एक प्लांट है, और उसके लेस को देख करके कहा कि वो रूट्स है, ठीक है। और सीयर ने क्या कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों गलत समझ रहे हो, ये तो एक्चुअल में एक घोंसला है, चिड़िया का घोंसला, नेस्ट है, जिसमें अभी देखना चिड़िया आएगी और अंडे भी देगी, ठीक है। सो मोनू, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ कैन इट बी अ नेस्ट? तो तुरंत फिर से मोनू ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो एक चिड़िया का घोंसला कैसे हो सकता है? तो भोला ने कहा, आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन दिस प्लांट ग्रोज बिगर देन बोथ ऑफ यू विल श्योरली बिलीव मी। भोला बियर ने भी मौका नहीं छोड़ा, उसने भी तुरंत कहा, तुम लोग मत मानो, लेकिन देखना थोड़े दिन बाद ये पौधा बड़ा हो जाएगा, तो तुम लोग को ना इसे देख करके यकीन हो जाएगा कि मैं सही कह रहा था और ये एक पौधा ही है, ठीक है। देन भोला, सीयर, बट आई थिंक you will see eggs in it. I am sure it is a nest. सीयर ने क्या कहा, पर मुझे तो लगता है कि तुम लोग कुछ दिनों में इसमें अंडे देखोगे, क्योंकि ये एक घोंसला है ना। मोनू, both of you are wrong. I am sure somebody ate some kind of fruit and left the shell here. Why don't you believe me? मोनू फिर नहीं मान रहा, उसने कहा, तुम लोग गलत बोल रहे हो, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ कि एक फ्रूट है और किसी ने एक वैरायटी का, मतलब कुछ अलग सा नया फ्रूट खाया है, जिसका शेल वो यहाँ छोड़कर चला गया। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? ऐसा मोनू द मंकी ने पूछा। On a tree nearby, Mittu the parrot was sitting and listening to the three friends. She knew what it was and decided to tell them. अब इन तीनों की इतनी सारी बातें सुन के पास ही में एक पेड़ पे एक मिट्ठू बैठा हुआ था, दैट इज द पैरट। द पैरट्स नेम वाज मिट्ठू। मिट्ठू नाम था उस पैरट का, और वो सुन रहा था कि ये तीनों क्या क्या बातें कर रहे हैं। और क्योंकि उस मिट्ठू को पता था कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है, तो मिट्ठू ने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों को बता दूं कि ये है क्या चीज़, क्योंकि ये तीनों तो आपस में बहस कर रहे हैं कि नहीं ये है, ये है। तीनों की अलग अलग बातें हैं ना। एक कह रहा है कि फ्रूट शेल है, एक कह रहा है कि पेड़ है, पौधा है, एक बोल रहा है कि नहीं ये तो चिड़िया का घोंसला है। लेकिन सच्चाई किसको पता है? सिर्फ मिट्ठू को। तो मिट्ठू ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें बता दूं, ठीक है। सो दिस वॉज योर लेसन टिल पेज नंबर 30, एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द लेसन विल रीड इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अगर हम लोग साथ में एक साथ पूरा इतना सारा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। सो अभी हमने इतना पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे, ओके। सो टिल दैट keep learning, keep reading, and try to understand the new words and the new meanings that ma'am have taught you, okay. Good day everyone.